हूँ। क्या आप लोग पढ़ना छोड़ गए हो? पढ़ना छोड़ गए है ना? चलो एनी हाउ, बच्चे स्टिल जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं बेटे, अगर किसी को कोई भी डाउट है बेटा पूछ लो अभी, क्योंकि बाद में ये डाउट्स एज इट इज रहते रहते रह जाएंगे। और जो टॉपिक्स आप कर रहे हो ना, ये आपके साथ साथ चलने हैं जब तक आपने बायो पढ़नी। और गलती से अगर किसी ने मेडिकल लाइन ले ली ना, तो ये तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन होगी इसकी। मींस एक ऐसे इंट्रोडक्शन जो आप पीछे सीख के आए हो, वो इसके आगे ही करवाएंगे। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ, सबको क्लियर है? Yesterday we had started the chapter of reproduction in plants. Reproduction in plants जो हमने किया था कल, मैं थोड़ा सा उसको एक ब्रीफ ओवरव्यू देके आगे मूव करती हूँ। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड, इजंट इट? अपनी ही तरह के यंग वंस को प्रोड्यूस करना, दैट इज वी कॉल इट एज रिप्रोडक्शन। Okay, and we are discussing it in plants. So for the reproduction in plants, we are having two methods of reproduction or two ways of reproduction. Number one is asexual ways of reproduction. In asexual ways of reproduction, beta, there are further 4 ways, and we had started one yesterday, right? In this method of reproduction, only one parent is there and no movement of gametes is there. Okay? Individual is formed without the involvement of gametes and it is formed by a single parent. Okay? And other method is sexual mode of reproduction. इसमें आपने फ्लावर पढ़ा हुआ है सबने, उसमें मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर और फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर पढ़ा है। ठीक है? By this mode of reproduction, new organism is formed by the fusion of the gametes. ठीक है? In asexual mode of reproduction, we had started the first one, fragmentation. ये हमने कल start की थी, and we will complete it about it today. Fragmentation करेंगे. Fragmentation के बाद next we will move to the budding. After budding, there is another form, spore formation, and last we will move to the vegetative reproduction. Most of you are familiar with these points. ठीक है, ज्यादातर पॉइंट्स या familiar हो. Vegetative, propagation, ये 4 पॉइंट्स बच्चे हमने इसमें करने हैं. ठीक है, इसके अलावा भी 1-2 होते हैं, बट दे आर नॉट इन अवर सिलेबस. क्लियर? फ्रेगमेंटेशन हमने स्टार्ट की थी. व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन, इट इज सीन इन स्पायरोगायरा. स्पायरोगायरा इज अ टाइप ऑफ एल्गी. ठीक है, मोस्टली you guys have seen green patches on a stagnant water body. Green patches देखे? What are these green patches? These green patches are okay. हाँ जी बेटे, the green patches that are seen. बच्चे यहाँ पे बोर्ड नहीं है तो मैं ऊपर ही लिख रही हूँ. फ्रेगमेंटेशन हमने डेफिनेशन कर ली थी. डायग्राम तो मुझे याद है हमने कर लिया था. फ्रेगमेंटेशन is a method of breaking down of an organism into fragments after the maturity. ठीक है, the green patches that are to be seen on water bodies, they are fast growing algae called Spirogyra. ठीक है, Spirogyra is a type of algae that is growing very fast on the water bodies. Okay, and soon they will cover the whole area.
their growth is quite quick and they will cover the whole area. The Spirogyra, अगर आपसे क्वेश्चन आता है what is the how do Spirogyra reproduce, ठीक है, what is the mode of reproduction, so you have to write Spirogyra is an organism that follows asexual mode of reproduction, asexual mode of reproduction, that is fragmentation. Reproduction, that is fragmentation. Okay, and in this mode, the organism breaks down into 2 or more fragments after maturity. Okay, and each fragment grows into a new separate organism. Clear? यहाँ तक I suppose we had done yesterday. Fragmentation तक हमने कर लिया था. अगर यहाँ तक किसी को डाउट है बच्चे, you guys can ask, नहीं तो otherwise I will move forward. हाँ जी, है किसी को? चले सेकंड पॉइंट पे. सेकंड पॉइंट, एक मिनट. हाँ जी गुनीत बोलो. मैम फ्रैगमेंट्स की डेफिनेशन रिपीट कर दो. फ्रैगमेंटेशन की, फ्रैगमेंट्स तो बेटे आप पीसेस कह सकते हो, पार्ट्स कह सकते हो. ठीक है, ग्रीन पैचेस जो आपने लिखा वो क्या है? जो ग्रीन पैचेस होते हैं बेटे वो एक ऑर्गेनिज्म है. आपके लिए वो ग्रीन पैचेस है लेकिन उसका नाम स्पायरोगायरा होता है. वो एक तरह की एल्गी होती है. इट इज अ टाइप ऑफ एल्गी. एल्गी के आगे फर्दर टाइप्स है, वो फर्स्ट टाइप है स्पायरोगायरा. ठीक है तान्या? मैम सेम डाउट था. ओके क्लियर. तो फ्रेगमेंट्स तो बच्चे, फ्रेगमेंटेशन इज splitting of an organism into 1 or 2 or more fragments after maturity, and soon they grow into the new organisms. Afterwards, next one is budding. Budding is a method. Budding is also a asexual method of reproduction. Budding, it is a method of asexual mode of reproduction, mostly seen. Budding is a method of asexual mode of reproduction mostly seen in organisms like yeast. It is mostly seen in the organisms like yeast. या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो yeast reproduces by budding. ठीक है. What happens? Yeast actually forms a bud. वो अपने ऊपर एक बड फॉर्म करता है. पहले बड लिख लो. बड की मीनिंग आप सबको क्लियर होना चाहिए. पहले बड का मीनिंग नोट डाउन कर लो. बड क्या होता है? बड होता है स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस. लिख लो, रिवाइज हो जाएगा. Small bulb-like projections coming out of the yeast body. Small bulb-like projections coming out of the yeast body. कैसे बच्चे? Suppose this is a cell. ये एक सेल है, ठीक है, और ये yeast का सेल है. ये हमारा न्यूक्लियस और ये आपका साइटोप्लाज्म. यही होता है ना सेल. ये सपोज यीस्ट है आपका. होता क्या है? स्लोली एंड स्लोली दिस यीस्ट स्टार्ट्स डेवलपिंग अ बड. इसके ऊपर एक ऐसे बड की तरह ऐसी प्रोजेक्शन बन जाती है. मींस ये चीजें उसकी डिवाइड होनी शुरू हो जाती हैं ऐसे. दिस इज कॉल्ड एज बड. ये ऊपर बड बन गई, ठीक है. एंड दिस बड slowly develops completely. फिर ये पूरी तरह से अलग हो जाती है. And finally it detaches from the parent's body.
ये अपने अपने दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। बडिंग, बडिंग की तो डेफिनेशन अभी कराई नहीं, ठीक है, अभी तो बड बताया। बड क्या होता है? बड होता है स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस that are present, that are formed on the yeast body, ठीक है, ये आपकी बड होती है। ओके, हाँ जी, yeast forms a bud on the side of a parent's body, on side of parent's body, पेरेंट की बॉडी की बिल्कुल एक साइड पे जाके बड बनाता है। that matures and after maturity it gets detached from the parent's body. Detached means separate हो जाना, जैसे यहाँ पे हो गई, ठीक है। After maturity the क्या लिखा था, yeast forms a bud on the side of parent's body that gradually grows and matures and get detached from the parent's body. That slowly grows, matures and get detached from the parent's body, right? And if you supply sufficient nutrients, ये second paragraph में लिख लेना बेटे, या in the presence of sufficient nutrients, presence of sufficient nutrients, or you can say if the right amount of nutrients can be provided to the yeast, the birds, the growing birds starts forming, the birds starts forming its own birds, starts forming its own birds when it is still attached to the parent's body, when it is still attached to the parent body, thus forming a long chains, thus forming long chains. कैसे? अब यहाँ तक आ गए, ये यहाँ पे अटैच्ड है, अगर आपने इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं, ये आपकी एक बर्ड है, इसके आगे दूसरी बर्ड एंड सो ऑन, ऐसे ही यहाँ पे भी, thus they form long chains, right? क्लियर है? दैट इज कॉल्ड एज बडिंग, मीन्स एक ऑर्गेनिज्म से देखो कितने सारे ऑर्गेनिजम्स बने, और अगर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर हैं तो यू विल गेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ, लिखा दिखाना, हाँ जी बच्चे, नोटेड डाउन अगेन, इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स, in the presence of sufficient nutrients, the birds that are growing, the growing birds that starts growing, बच्चे वही रिपीट कर रही हूँ, वही लाइन रिपीट कर रही हूँ, because there is a query from here कि मैम रिपीट कर दो. In the presence of sufficient nutrients, the growing birds start growing its own buds. ठीक है? The birds they start growing its own buds when they are still attached to the parent's body. अब यहाँ पे तो डिटैच हो गए, दो अलग अलग बन गई और इन्होंने अपनी बर्ड्स बना ली, दैट इज नॉट अ बिग इशू. लेकिन जब वो स्टिल अटैच है, यहाँ पे भी वो अपनी बर्ड्स बना लेते हैं अगर इनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं. और बच्चे ये चीज आप लोग सब देख सकते हो, कैसे? You guys can see it. Yeast जो है ना बेटे, it is used in almost all the bakeries. शायद कुछ घरों में भी यूज होता है, ठीक है. बेकरीज में आपके केक को फ्लफी करने के लिए या मैदे का आटा गूंथते ना भटूरे वगैरह के लिए, उसमें भी यीस्ट डलता है.
और अगर आपको देखना है ना, एक पिंच ऑफ यीस्ट ले लेना, बिल्कुल एक छोटा सा पिंच ले लेना, ठीक है। 2 स्पून ऑफ वाटर एंड 1 स्पून ऑफ शुगर डाल के उसमें यीस्ट डाल देना, ठीक है। उसके बाद उसमें से जस्ट एक ड्रॉप आप लोगे ना, आफ्टर 1.5 आवर, आप जस्ट एक ड्रॉप ऑफ वाटर अगर स्लाइड के अंदर ऑब्जर्व करोगे ना, तो यू विल ऑब्जर्व सच टाइप ऑफ चेंज। ऐसी बहुत सारी चेंज आपको दिखाई देंगी, ठीक है। वी विल ट्राई कि अगर पॉसिबल हुआ आई विल शो यू अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। हाँ जी बच्चे, बडिंग का मीनिंग क्लियर हो गया। नाउ लेट अस लेबल द डायग्राम्स, ठीक है। फर्स्टली तो बल्ब लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं? बड। दिस इज कॉल्ड एज बड विच इज स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन। और ये आपका क्या है? यीस्ट सेल, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या है? buds get detached, buds gets detached, सेपरेट हो गई हैं, या सेपरेटेड भी लिख सकते हो अगर नहीं डिटैच्ड क्लियर होता। buds remain attached long chains of buds, long chains of buds, ठीक है। long chains of yeast, rather buds भी नहीं, yeast। बुक वाला फॉलो कर सकते हैं बेटे, बुक वाला ही है, सेम बुक वाला है, बस मैंने उसमें यहाँ पे 2 चीजें सेपरेट कर दी हैं। और ये एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है, एक्टिविटी में आपने यही उन्होंने बताया हुआ है कि यू जस्ट हैव टू टेक शुगर, स्पूनफुल ऑफ शुगर, वाटर, और साथ में यीस्ट थोड़ा सा लेके उसको 1 आवर के लिए रख दो। 1 आवर के बाद टेक अ ड्रॉप ऑफ दैट वाटर एंड ऑब्जर्व अंडर हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप। उसके अंदर आपको ये सब दिखाई दे, ठीक है। एंड इट इज ऑलमोस्ट सेम व्हाट इज गिवन इन योर बुक। हाँ जी बच्चे, अब मुझे बताइए किसी चीज बच्चे को बडिंग में डाउट है? एक सेकेंड। हाँ जी बच्चे, बडिंग समझ नहीं आया। व्हाट इज बडिंग? budding is मैम the समझ mode नहीं of asexual reproduction. Budding is a asexual mode of reproduction which is mostly seen in the organisms like yeast, ठीक है। It is a type of asexual mode of reproduction that is seen in yeast. Okay, any other doubt? हाँ जी, ओके बच्चे। यस मैम। हाँ जी, मैम जो डिटैच और अटैच होते हैं डिटैच वो मींस सेपरेटेड नहीं, डिटैच्ड तो समझ आता, सेपरेटेड लिख लो। मैम वो तो आता है। सेपरेटेड, वो plus डिटैच मींस सेपरेट हो जाना, अटैच मींस कि उसके साथ में अटैच्ड है, मैम ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट, इसका क्या मतलब? इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मींस जब इनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, प्रॉपर खाना मिलता है। जैसे मैंने आपको एक्टिविटी दिखाई है, इवन आपकी बुक में भी जो दी हुई है उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि वाटर में आपने जब वो डालना है यीस्ट, तो उसमें 1 स्पून ऑफ शुगर भी डालना है। देखो इट मींस क्या है, आप यीस्ट को शुगर दे रहे हो, शुगर प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और साथ ही साथ आप वाटर प्रोवाइड कर रहे हो, उसके उन न्यूट्रिएंट्स की वजह से, क्लियर। स्लिमी, स्लिमी मीन्स थोड़ा स्लिपरी टाइप, ओके जी। हाँ जी, क्लियर हो गया। ऑल राइट चिल्ड्रन,
Now let's move to the next. आजा बच्चे. This is the process of budding. Next is spore formation. Spore formation can also be seen in yeast. ठीक है, yeast में भी sometimes देखी जाती है. और yeast के अलावा yeast से ज्यादा पॉपुलर ये चीज है ब्रेड मोल्ड में. ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन इट इज मोस्ट पॉपुलर इन ब्रेड मोल्ड. ब्रेड मोल्ड भी एक्चुअली एक तरह की फंगस होती है. फंगस ही कहते हैं ना, जब आपकी ब्रेड खराब हो जाती है, ऊपर से व्हाइट और ग्रे पैचेस आ जाते हैं, दैट वी कॉल इट एज फंजाई. ठीक है, और फंजाई की एक टाइप है दैट इज वी कॉल इट एज ब्रेड मोल्ड. और ब्रेड में बहुत जल्दी लगती है, इसलिए इसका नाम ही ब्रेड से पड़ गया. राइट, this is a method of asexual. This is a asexual mode of reproduction. Spore formation is a asexual method of reproduction that is seen in. देखना नहीं. It is a method of asexual mode of reproduction which is seen in fungi. Fungi पता ना, this is the plural form of fungus which is seen in fungi on a bread piece. ठीक है, fungi on a bread piece, जो bread piece के ऊपर जो fungi होता है उसमें दिखाई देती है. और it is also called as bread mold. This is also called as bread mold. ठीक है, it is also called as bread mold. Mostly फंजाई बहुत तरह की होती है बेटे, फंगस बहुत तरह की होती है, इवन स्किन एलर्जी बहुत करती है. ठीक है, तो ब्रेड के ऊपर जो होती है वो मोस्ट कॉमन होती है. और मुझे लग रहा है आप सबने कभी ना कभी जरूर देखी. ब्रेड पीस तो डेफिनेटली खराब हो ही जाते हैं. और अगर किसी को डाउट है ना, आज जाके एक ब्रेड का पीस निकाल के बाहर रख देना, इतना मॉइस्चर है, 2-3 दिन बाद आप देखोगे वैसे खराब हो जाए. ठीक है, और आप एक चीज नोटिस करना, सपोज दिस इज योर पीस ऑफ ब्रेड. ठीक है, ये आपके ब्रेड का पीस है. यहां से थोड़ा सा ग्रे ग्रे पैचेस होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे बिल्कुल कहीं पे डार्क, कहीं पे ज्यादा, ऐसे कुछ पैचेस होते हैं. मीन्स ब्रेड ऐसा नहीं है कि एक सीक्वेंस में चल के खराब होती है, वो अलग अलग बीच बीच में से खराब होती है. क्यों? अगर ये फंगस है तो ये एक जगह पे सपोज ग्रो कर गई, तो इसको फैलने के लिए ये बीच में ठीक कैसे रह गई? इसका एक रीजन है स्पोर फॉर्मेशन. ये जो फंगस है ये स्पोर्स बनाती है एंड दीज स्पोर्स दे गेट बर्स्ट. कैसे? ये एक्चुअली इस तरह के स्पोर्स होते हैं जैसे आपके प्लांट की रूट्स नहीं बनाते हो, ऑलमोस्ट ऐसे होता है. ठीक है, और इट विल ग्रो लाइक दिस. ये पार्ट्स को मैं अभी लेबल करती हूँ. ये इसके अंदर ये जो डॉट्स है ना, दीज आर दी स्पोर्स. और इन स्पोर्स को आप एक ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे सीड्स नहीं होते. ये क्या होता है, जब ये बर्स्ट कर जाते हैं ना, तो ये जो सीड्स हैं ये स्प्रेड कर जाते हैं पूरी ब्रेड पे. अब जहां जहां ये सीड्स स्प्रेड किए, वहां वहां न्यू ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं. ठीक है, वहां पे न्यू ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं. एंड these different parts of this organism. ठीक है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हम लेबल करते हैं. फर्स्ट पार्ट है हाइफी. दिस इज कॉल्ड एज हाइफी. हाँ जी, कर लिया? ड्रॉ हो गया? कम से कम डायग्राम तो ड्रॉ कर लो. ठीक है, एंड ऑन हाइफी these bulb-like structures, these hard outer covering, they are to be known as sporangium because they contain spores inside them. ठीक है, they are called as sporangium. And on the above side of hyphae there is an erect structure. Erect means almost a सीधी structure होती है. This is called as
स्पोरेंजियोफोर, ठीक है, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। हाइफी के ऊपर वाली साइड पे एक इरेक्ट, एक सीधी स्ट्रक्चर होती है विच इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियोफोर, और उसके ऊपर एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है दैट कंटेन्स स्पोर्स, एंड these spore these are this is called as sporangium. Okay, you guys can note it down. Bread mold has a thread-like structure. Bread mold has a thread-like structure called as hyphae. Bread mold has a thread-like structure called as hyphae. लिखा हुआ है आपकी बुक में, hyphae लिखा है? hyphae, ठीक है। ये हमारी thread-like structures होती हैं. These are not actually the roots, ये thread की तरह होते हैं, ठीक है। ये एक्ट थोड़ा थोड़ा आपकी रूट्स की तरह करते, राइट। And a knob-like structure at the top, and the knob-like structure at the top, which is called as sporangium. Knob-like structure at the top called as sporangium. It is a hard outer covering. It is a hard outer covering that contains, it is a hard outer covering that contains spores, that contains spores, which on maturity bursts फट जाते हैं, which on maturity bursts. ये वाला जो स्पोरेंजियम है, which on maturity bursts, आप सेपरेट लाइन भी बना सकते हो कि स्पोरेंजियम on maturity bursts, and these spores they spread out in the air, they spread out in air and grows into new organism, and grows into the new organism, ठीक है। आई थिंक स्पोरेंजियम क्लियर है, हाइफी क्लियर है, स्पोरेंजियोफोर रह गया, इसकी लाइन लिख लो। ऑन द टॉप ऑफ हाइफी, on the top of hyphae, on the top of erect hyphae, या सीधा लिखो, the top of hyphae is called as sporangiophore, ठीक है। the top of hyphae is known as sporangiophore. हाँ जी बच्चे, अब बताइए, बर्डिंग क्लियर है, ठीक है। बच्चे लास्ट 2 मिनट्स हैं, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक नहीं शुरू करूंगी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपकी बुक में फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जहां पे हमने ये सेक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शुरू किया ना, उसमें देखना बुक में स्टार्टिंग की हुई है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट स्पोर फॉर्मेशन। अगर किसी को स्टिल डाउट हो, यू गाइस कैन आस्क। जो फोर्थ वाला है ना, सॉरी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन, सॉरी, इट इज प्रोपेगेशन, फोर्थ पार्ट है, दैट वी विल स्टार्ट अप टुमारो।
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम कल शुरू करेंगे, ओके। लेकिन हाँ जी, इससे पहले हमने 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। वो पार्ट्स इसके बाद दिए हों, ठीक है। अगर इन तीनों में कोई डाउट है, प्लीज आई रिक्वेस्ट, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, बेटे एक बार एक रीडिंग जरूर दे लेना, तभी आपको ये मेथड्स क्लियर होने, नहीं तो एंड में जाके ऐसे मिक्सिंग हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि ये मेथड है किस चीज, ठीक है। जस्ट गो थ्रू वंस। और जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मेथड है ना बेटे, दैट माइट बी यूज्ड बाय यू ऑल, ये आप सबने कभी ना कभी जरूर यूज किया होगा। कैसे? कभी किसी ने पोटैटोज ग्रो किए, ये रहा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ऑन द ब्रेड मोल्ड, जो आपको ब्रेड के साथ अटैच करके रखती है, ओके जी। हाँ जी, कभी किसी ने कोई प्लांट ग्रो किया है? क्या ग्रो किया आपने? पोटैटो ग्रो किया है। तो जब आपने पोटैटो ग्रो किया था, किस चीज से ग्रो किया था? पोटैटो को इटसेल्फ डाल दिया था। हाँ जी, रोज पोटैटो मोस्ट कॉमन है। ये सारे जो प्लांट्स हैं, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आप देखना पोटैटो का हमारे बुक में भी है, ठीक है, पोटैटो का भी है, रोज स्टेम का भी है, जितने आपकी बुक में है वो तो हमने करने ही करने हैं मेथड्स, ठीक है। अब पोटैटो को आपने कैसे ग्रो करना है, आप घर जाके देखना, पोटैटोज के ऊपर एक पोटैटो लेके देखना, उसके ऊपर आईज होती है ना, और समटाइम्स जो फ्रेश पोटैटोज होते हैं ना, उनकी आईज में छोटी छोटी रूट्स भी होती हैं। हाँ, उसके ऊपर छोटी छोटी रूट्स भी होती है। स्पेशली आप इस सीजन में ना, ये जो रेनी सीजन है, आप एक पोटैटो लेके ना उसको एक साइड पे रख दो, उसको यूज नहीं करना, पड़ा रहने दो उसको थोड़ा सीलन में। थोड़े टाइम बाद आप देखोगे, आफ्टर अ वीक उसके ऊपर छोटी छोटी रूट्स डेवलप हो जाती हैं उन आईज में से। इट मीन्स दैट आईज एक्ट एज बल्ब, ठीक है। ये टॉपिक हम कल करेंगे, पोटैटो वाला। If there is any doubt, you can ask, or otherwise end the class. Okay. So children, go through this topic and tomorrow we will continue with the next.